میں انس گیلانی جو سب کا درد شیئر کرتا ہوں۔ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آخر میری کہانی کیا ہے، میں کیوں اتنا درد لکھتا ہوں۔ تو میں آپ سب لوگوں سے اپنی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں ایک بہت برا انسان ہوں جس نے اپنی زندگی خود خراب کی ہے۔ 14 سال پہلے میں اسکول سے کالج پہنچ گیا، جہاں کلاس کے پہلے دن ہی میں نے اپنی کزن کو دیکھا تو پتا چلا کہ ہم ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، پر ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پسند نہ کرنے کی وجہ ہماری فیملی کی آپس میں لڑائی تھی جو سالوں سے چلتی آ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں پوری کلاس میں مشہور ہو گئے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کلاس کی سب سے لائق لڑکی کے نام سے مشہور ہو گئی اور میں سب سے نالائق لڑکے کے نام سے۔ وہ اس وقت بہت خوش ہوتی تھی جب ٹیچر کسی نہ کسی بات پر میری انسلٹ کرتے تھے، اور میں بھی اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ آئی بڑی پڑھ لکھ کر آرمی آفیسر بننے والی، کیونکہ یہ وہ سب کو کہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر آرمی آفیسر بنوں گی۔ ہم دونوں کی ایک دوسرے کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس نے پورے خاندان میں میری نالائکی کے قصے سر عام کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اگلے دن کلاس میں جاتے ہی سب کے سامنے تماچا دے مارا، جس کی وجہ سے وہ بہت روئی اور کئی دن تک کالج نہ آئی۔ میں بہت خوش تھا کہ جان چھوٹ گئی، پر کچھ ہی دنوں بعد وہ واپس کالج آ گئی اور واپس آ کر چپ چاپ رہنے لگی۔ اس کی چپ مجھ سے برداشت نہ ہو رہی تھی، تو کچھ ہی دنوں میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگ گیا۔ پھر آخرکار میں نے اس سے بات کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لی، لیکن پتا چلا کہ اس کے چپاٹے کی وجہ سے ناراض نہیں بلکہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا رشتہ پکا ہونا ہے۔ اس کے گھر والوں نے امتحان کے فوری بعد اس کی شادی کا فیصلہ کر دیا تھا، پر وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے آرمی آفیسر بننا تھا۔ یہ سب جان کر میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو گئی اور میں نے اسے دلاسا دیا کہ وہ فکر نہ کرے، میں کچھ ایسا کروں گا اس کی شادی نہیں ہوگی اور اس کا آرمی آفیسر بننے کا خواب پورا ہوگا۔ اسی طرح ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ ہم بہت اچھے دوست بن گئے اور کلاس میں ایک ساتھ بیٹھنے لگے۔ سب کلاس والوں کو حیرانگی ہونے لگی کہ یہ کیسے دوست بن گئے، یہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر زندگی موج مستی میں گزرنے لگ گئی اور ایسے ہی مذاق مستی امتحان سر پر آ گئے اور اس کی پریشانی بڑھتے جا رہی تھی کہ امتحان کے بعد اس کی شادی کر دی جائے گی، پر پھر اس کا آرمی آفیسر بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ تب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں اور اس کی شادی کو کسی طرح روک دوں۔ تو میں اس لڑکے سے ملا جس سے اس کا رشتہ پکا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بھی ہمارا کزن تھا اور میں نے اسے کہا کہ میں ہماری کزن یعنی تمہاری منگیتر سے پیار کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک کلاس میں پڑھتے ہیں اور وہ بھی مجھے سے بہت محبت کرتی ہے، تو پلیز تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ تو اس لڑکے نے مجھے یقین دلایا کہ میں یہ رشتہ توڑ دوں گا اور تمہارے پیار کا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اسی طرح رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ بہت خوش تھی کہ اب اس کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ اس نے مجھ سے بہت پوچھا کہ یہ کیسے کیا، پر میں نے بس اتنا کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، بس ایسے ہی خوش رہو اور اپنا خواب پورا کرو۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم دنیا کے سب سے اچھے دوست ہو اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ اس کی اس خوشی سے میں بہت خوش تھا اور پھر ہمارے امتحان شروع ہو گئے۔ زندگی بہت خوبصورت چل رہی تھی۔ امتحانات کے دوران ہم زیادہ قریب ہو گئے تھے کیونکہ ہمارا سینٹر اور کمرہ ایک ہی تھا۔ آخری پیپر سے ایک دن پہلے ہم کنٹین پر بیٹھے تھے تو احساس ہوا کہ اب کالج ختم ہو رہا ہے اور زندگی بدلنے والی ہے اور اب ہم ایسے نہیں مل سکیں گے۔ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی
पर इतने में हमारे जाने का वक्त आ गया तो उसने कहा कि कल बात होगी। फिर शाम को किसी नंबर से मुझे उसकी कॉल आई। वो रोई जा रही थी और कह रही थी कि तुमने ये क्या कर दिया है। मैंने तो तुम्हें दोस्त माना था पर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और कॉल बंद हो गई। मैंने फौरी बैक कॉल की तो नंबर बंद जा रहा था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई और ना ही पढ़ने को दिल किया। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि सुबह इम्तिहान सेंटर में उससे मुलाकात होगी, लेकिन वो सुबह आखिरी पेपर देने ही नहीं आई। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और वो पेपर देने क्यों नहीं आई। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कमरे इम्तिहान में दाखिल हो सकूं। मैं भी आखिरी पेपर ना दे पाया और अपने घर आ गया। इसी तरह हम दोनों की पढ़ाई और करियर बर्बाद हो गया। मैं घर आया तो पता चला कि ये सब मेरे उस झूठ की वजह से हुआ है। जो झूठ मैंने उसका रिश्ता तोड़ने के लिए बोला था, जो मोहब्बत हम में थी ही नहीं, उस मोहब्बत के झूठे पूरे खानदान में लग चुकी है, जिसकी वजह से उसके घर वालों को बहुत बदनामी हुई है और उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा है। उसका कॉलेज खत्म करवा दिया, उसे घर में कैद कर दिया गया है। ये सब जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी एक गलती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उससे बात करके माफी मांगना चाहता था पर उससे मुलाकात या बात करना नामुमकिन हो चुका था। मुझे तो ना रात को नींद आती थी और ना ही दिन में चैन। बस दिल पर बोझ था कि मैंने उसको बर्बाद कर दिया है। मैंने उसका करियर तबाह कर दिया है। मैंने उसका ये ख्वाब तोड़ दिए हैं और ये पछतावा मुझे हर रोज अजियत दे रहा था। मेरी ना किसी से मिलने को दिल करता, ना किसी से बात करने को। मैं कई बार उसकी गली में घंटों खड़ा रहता कि कहीं से वो एक दफा नजर आ जाए और उसके घर आने जाने वालों लोगों से उसका हाल पूछता रहता। और ऐसे ही देखते हुए एक साल गुजर गया। फिर रिश्तेदारों में एक शादी आई जहां मेरी फैमिली और उसकी फैमिली को इन्विटेशन था, तो मुझे में से एक मुलाकात की उम्मीद जाग उठी। मैं उस शादी पर गया तो देखा कि उसकी सारी फैमिली आई है और वो नहीं आई। तब मैं बहुत टूट गया और मैं शादी अटेंड किए बगैर तबीयत का बहाना करके घर आ गया। घर अकेला बैठा उसके बारे में सोच रहा था कि मुझे उसी नंबर से कॉल आई जिस नंबर से उसने मुझे पहले कॉल की थी। मैंने फौरी अटेंड की तो मैं हेलो हेलो करता रहा पर उसने कोई बात नहीं की। आवाज सुनाई दे रही थी तो बस उसकी सांसों की या फिर उसकी सिसकियों की। कॉल 2 मिनट तक चलती रही और फिर बंद हो गई। कॉल बैक की तो नंबर बंद जाने लगा। 2 दिन बाद मुझे अपने घर से पता चला कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है और अगले ही महीने उसकी शादी है। उसकी शादी वहीं हो रही है जहां से रिश्ता टूटा था। उसकी शादी का सुनकर पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि दर हकीकत मैं उससे सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता था बल्कि उसे ये बताना चाहता था कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। मगर उसकी शादी का सुनकर मेरे हर अरमान टूट गए। तकलीफ और बढ़ती चले गई थी कि ना तो मैं उससे माफी मांग सका और ना ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर सका। उसकी शादी से ठीक 2 दिन पहले जब मैं अस्पताल में बीमार पड़ा था तो उसकी मुझे फिर से कॉल आई। मैंने हेलो किया तो वो कहने लगी कि मेरी शादी है उसी लड़के के साथ जिससे तुमने झूठ बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो सोचो क्या वो मेरी कदर करेगा। मैंने तुम्हें दोस्त माना था लेकिन तुमने मेरी मदद करने की बजाय मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारी वजह से मुझे 1 साल तक अपने घर में इसी गलती के लिए कैद रखा गया जो मैंने कभी की ही नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगी तुमने चकनाचूर कर दिया। तुम्हें याद होगा आखिरी पेपर से 1 दिन पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तब शायद मैं तुमसे कहना चाहती थी कि तुम बहुत अच्छे हो और तब शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था। पर कुछ ही लम्हों के बाद तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई।
और वही प्यार नफरत में बदल गया। तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ। और कॉल बंद हो गई। उसकी कॉल के बाद मेरी अजियत मजीद बढ़ने लगी, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत का बताकर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। फिर वो क़यामत का दिन जब उसकी बारात का शोर मुझे इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने अपने हाथ की नब्ज काट ली। पर किस्मत में अभी और दर्द बाकी था, जिसकी वजह से मैं बच गया। 2 दिन बाद होश आया तो कजन ने बताया कि उसकी शादी हो गई है। फिर मैंने खुद को तन्हाई में कैद कर लिया। दिन रात बस उसकी यादों में पल पल मरने लगा। उसके हिजर ने मुझे ज़हनी मरीज बना दिया। सोने के लिए नींद की गोली खाने लगा। एक वक्त ऐसा भी आ गया, नींद की गोली भी असर करना छोड़ गई। फिर कई दिन तक नींद नहीं आती थी। बस यही सोचता रहता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर खुद को दुश्मन देने लगा। मैंने खुद की जिंदगी को जहन्नम बनाया है। मैं चाहता था कि एक बार वक्त वापस लौट आए तो मैं सब ठीक कर दूंगा, पर गुजरा हुआ वक्त कहाँ वापस आता है। तो मैंने कैद की तन्हाई को अपना मुकद्दर मान लिया। मैंने ये भी मान लिया कि मेरी गलती की वजह से हमारी मोहब्बत का अंजाम बुरा हो। पर मैं इस बात से अनजान था कि जिसको मैं मोहब्बत का अंजाम समझ रहा हूँ, वो तो अभी मोहब्बत का आगाज है। 1 साल कैद तन्हाई में रहने के बाद मेरे घर वालों ने मुझे बाहर के मुल्क भेज दिया। वहाँ रहने 3 साल हो चुके थे। मुझे खबर मिली कि उसके शोहर ने बच्चा ना होने की वजह से उसे तलाक दे दी है। तो मैं अगले ही दिन टिकट करवाकर वापस आ गया और आते ही अपने घर वालों से उसके साथ शादी की बात की, पर मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। तो मैंने झट उनके घर चला गया। उसके घर वालों ने मुझे देखते ही इतना गुस्से का इजहार किया, पर मैंने कहा कि मैं बात करने आया हूँ और करके जाऊंगा। मैंने उसकी अम्मी अब्बू से बात की कि मुझसे गलती हो गई थी और मैं इस गलती की माफी चाहता हूँ। अब मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी ये बात सुनते ही उसके अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारते हुए घर से निकाल दिया। घर आया तो घर वालों ने मेरी अलग इंसल्ट की और फिर उसकी कॉल आ गई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने उसे पूछा कि कैसी हो तुम, तो वो कहने लगी मेरा हाल छोड़ो, तुम बताओ आखिर चाहते क्या हो। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने अपनी गलती की सजा काट ली है। 5 साल में ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें तुम्हें याद करके रोया ना हो। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज मेरे जख्मों को मरहम बख्श दो। तो वो कहने लगी कि पहले कम बर्बाद किया था जो अब दोबारा आ गए हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर मेरे घर वाले मान भी जाते तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वैसे भी आप मुझसे शादी नहीं करना, तो प्लीज अपने घर वालों को और मेरे घर वालों को मजीद जलील मत करो और आप बस कर दो और किसी से शादी कर लो। मैंने साफ कह दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो रोते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें हारी कभी नहीं हो सकती। ये नहीं हो कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जान ले लूं। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं अब तुमसे शादी की जिद नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा और आखिरी सांस तक करूंगा। तो साथ ही उसके मिजाज नरम हो गया और मुझसे कहने लगी कि हम फिर से दोस्ती कर सकते हैं, पर सिर्फ दोस्ती ही, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर हम दोनों दिन रात बात करने लगे। मैंने हमेशा कोशिश की कि उसे मेरी कोई बात बुरी ना लगे और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। हम दोनों इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास कर चुके थे। हमारी फैमिलीज के आपस से झगड़े भी खत्म हो चुके थे। सबको पता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सब इस बात से राजी भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। हम एक साथ बहुत खुश थे और जब हम
प्राइवेट बीए की तैयारी कर रहे थे तब मैंने उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज किया। उसने फिर से साफ इनकार कर दिया और कई दिन मुझसे बात नहीं की। मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि आखिर वो मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहती। उसकी बातों से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी बहुत केयर करती है और मेरे लिए तैयार होकर मुझसे मिलने आती है। सारा दिन सारी रात मुझसे बातें करती थी। मेरी बीमार होने पर रो पड़ती थी। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ दिखाई देता था, पर पता नहीं उसके जहन में ऐसा क्या चल रहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। बीए का इम्तिहान पास होने के बाद हमारे घर में हमारी शादी की बात चलने लगी, पर वो अपनी जिद पर जुटी रही थी। सबने उसे समझाया कि वो लड़का पिछले 10 सालों से तुम्हारे साथ है, तुमसे शादी करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। सबने बहुत मिन्नतें की पर वो नहीं मानी। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था तो मैंने उसे बहुत सुनाई और हमेशा के लिए तलाक खत्म करके अपने घर आ गया। उसने मुझे बहुत कॉल और मैसेज किए पर मैंने किसी को भी जवाब नहीं दिया और मैं फोन ऑफ करके सो गया। सुबह उठा तो पता चला कि वो घर छोड़कर कहीं चले गई है और मेरे लिए एक खत भी छोड़ गई है। खत में लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमसे क्या, मैं किसी से भी नहीं कर सकती। ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हुआ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरा शोहर इंसान नहीं बल्कि अमान था और उसने मुझसे झूठ की हर रोज सजा दी जो तुमने उसे बोला था। मेरे माँ बाप ने तो अपनी मर्जी करके उस हवान से मेरी शादी कर दी, पर उसको मुझसे शायद नफरत थी। उसने मुझ पर कोई जुल्म नहीं है जो ना किया हो। मुझे वो हर रोज मारता था और इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी और मुझे कहता था कि तुम्हें मारकर मुझे सुकून मिलता है। मैं माँ बनने वाली हुई तो वो मुझे कहने लगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा तो तुम्हारे उस कजन का है जिससे तुम प्यार करती हो। और फिर मेरे पेट पर जोर जोर से टांगे मारने लगा, यहाँ तक कि मेरे जिस्म से खून निकलने लगा। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने तो अब्बू से बोला था कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, पर अब्बू ने कहा कि पहले ही तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब और हमें जलील मत करो। मैंने अम्मी को तो सब बताया था, लेकिन अम्मी ने कहा कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं। इस हवान ने तो मुझे इतना मार चुका कि अब किसी मर्द को खुद के करीब सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मुझ में लड़कियों वाली फीलिंग मर चुकी है। अब मुझ में बस एक डर बचा है। सब जिद कर रहे हैं मैं तुमसे शादी कर लूं, पर मुझसे ये नहीं होगा, इसीलिए मैं सबसे दूर जा रही हूँ। हमारी अधूरी मोहब्बत और पूरी दोस्ती का सफर बस यहीं तक का था। मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। जिंदगी में आगे बढ़ जाना और प्लीज तुम अब शादी भी कर लेना। अब कभी मुलाकात नहीं होगी, खुदा हाफिज। और फिर 2 दिन बाद उसकी लाश नहर के किनारे मिली। मैं उसे चिपक कर कह रहा था कि उठ जाओ, मैं फिर कभी शादी की जिद नहीं करूंगा, कोई भी शादी का नहीं कहेगा, हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, तुम बस प्लीज वापस आ जाओ। पर वो मुझसे कोई बात कर ही नहीं रही थी। अपनी मोहब्बत का जनाजा अपने कंधे पर उठाकर चलना आसान नहीं होता। मैंने अपनी 11 साल मोहब्बत को अपने हाथों से मिट्टी के नीचे दफन किया है। वो सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदा रहने की वजह भी थी। उसके जाने के गम ने मुझे जिंदा लाश बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मोहब्बत का इंजाम ऐसा होगा। मैं उसे कभी नहीं भूल सका, मैं उससे प्यार करना भी नहीं छोड़ सका। 3 साल हो गए उसे मुझसे जुदा हुए। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैं उसे याद में ना रोया हो। वो मुझे हर रोज याद आती है, बहुत याद आती है। जानिश लोग मुझे समझाने आते हैं,
کہ اسے جانا تھا وہ جا چکی ہے، مجھے آگے بڑھ جانا کو کہتے ہیں۔ کیسے اسے بھول جاؤں؟ کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے دوں؟ مجھے اس سے یہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ میں آخری سانس تک اس کا ہوں اور پھر ایک دن موت کو گلے لگا کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جہاں خود خدا ہمیں ایک کر دے گا۔ موت نے آ کر مجھے بچانا ہے۔ میری قبر کے تختے پر شکریہ لکھنا۔ اگر میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔